Okay, but chapter number 8 we are starting today. How do organisms reproduce? This is our chapter. Yes, what we are going to study in this chapter. हाँ जी बेटे, Ishita, you want to speak something? Ishita. हाँ जी Ishita. Speak up बेटे if you have any question. मैम सैटरडे को ना एक्चुअली असेसमेंट थी और असेसमेंट के लिए कॉल नहीं आई थी सैटरडे, तो मतलब असेसमेंट का क्या होगा? We have not called some of the students, ठीक है, but we will take one another day और उस दिन हम उन्हें कॉल कर लेंगे, ठीक है. Don't worry about that. Teacher have marked in her diary. आपको कॉल आ जाएगी. Don't worry. Okay. Okay मैम. Okay बेटा, you mute yourself. Yes, but this chapter we are going to start today. So after the chapter life process, you are supposed to do this chapter because the chapter control and coordination is not there in your syllabus. But we have started the brain. तो उसमें मैंने आपको 4 brain करवा दिया था children. I will make another separate recording for that, and you go through the school YouTube channel for that. Okay, we are not supposed to revise that chapter because that is not the part of the syllabus. So today I am starting with this new chapter, how do organisms reproduce. Yes children, what is given in the introduction? If you have any question, you can use the chat box. Don't unmute. Okay, आप chat box में अपना question लिखेंगे. I will give you the answer. Yes children, what we are going to study in this chapter? We are going to study here about the types of reproduction. You have learned in your previous classes that how many type of reproduction are there. All of you know very well. There are 2 types of reproduction, asexual and sexual method. Okay, asexual method of reproduction, which are generally known as vegetative propagation. So in class 7th and 8th, you have learned about the various methods of vegetative propagation. So what is given in the introduction of the chapter? That all living organisms have to reproduce. Okay? Though you have learned in the previous chapter life process that there are certain processes that are vital for the survival of a living organisms. Okay, these may be nutrition, you can say digestion, respiration, circulation, excretion, etc. But reproduction, though it is not a vital process, but every living organism must have to be participate in this process. Then there is a question that comes in your mind that why a living organism must have to be reproduced. Okay बेटे, अगर reproduction एक vital process नहीं है तो फिर living organisms जो है वो reproduce क्यों करते हैं? Because reproduction is an energy consuming process. Lot of energy is used in this process, and it is also not playing a significant role in the survival of a living organism. But after these reasons too, the living organism must have to be reproduced. So there is a basic reason behind this question that every living organism has to be reproduced because nobody on this earth want to live alone. ठीक है, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अकेले रहना पसंद करते हैं. Every living organism want to share his life with other organisms. ठीक है, so that the organism feel happy. ठीक है, he has other members by which he can easily communicate. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट करता है क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे अलोन रहना, अकेले रहना पसंद नहीं करता. And another very important thing is that reproduction is the only method by which a living organism maintains the continuity of their species. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्पीशीज है उनकी क्वांटिटी जो है उसको बना सकते हैं. And through this process, the living organisms they have the ability to produce other organisms which are similar to themselves. ठीक बेटे, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनको तैयार कर सकते हैं. So
So it is given in the introduction that you have learned about the various type of life processes, nutrition, okay, but digestion, respiration, circulation, and excretion. So reproduction, though it is not a vital process, but every living organism must have to be participate in the process of reproduction so that they are able to produce other living organisms which are similar to themselves. And reproduction is the only method by which a species can maintain continuity of their species. ठीक है, एक ऐसा मेथड है जिससे अपनी ही स्पीशीज की जो कॉन्टिन्यूटी है उसको वो बनाए रख सकते हैं। ओके बेटे, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ये चाहता है कि उसके जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, तो इसीलिए वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज, ठीक है, किस तरह का वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बेसिस पे, एंड हाउ व्हाट इज द बॉडी डिजाइन ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन कैसी है उसके बेसिस पे we have divided the method of reproduction into two categories. Okay, but these may be the asexual method of reproduction or it may be the sexual method of reproduction. अब उसके एग्जैक्टली नीचे देखिए, आपको उसने बताया है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो अगर हम कहते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स whenever they undergoes the process of reproduction. Okay, but so these living organisms, when they undergo the process of reproduction, there are numerous changes that happen in the body of a living organism. अब किसी भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म ने डॉटर ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना है, तो फिर क्या होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है इट कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी, and these cells which are actually involved in the process of reproduction, they are known as the reproductive cells. ठीक है बेटे, as you know that in case of a multicellular organism there is a division of labor present between cells in the body of a multicellular organism. So if some of the cells they are doing the task of nutrition, some cells are involved in excretion. So there may be some specific type of cells that are involved in the process of reproduction. Okay, so when the living organism they cross their stage of puberty, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पुबर्टी की स्टेज को क्रॉस कर जाती है, तो आफ्टर दैट स्टेज these reproductive cells they become active. ठीक है, पुबर्टी की स्टेज से लेकर और उस स्टेज के बाद तक रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, and these reproductive cells which are also known as the germ cells they start producing gametes. Okay बेटे, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ तो you know that in case of human beings the reproductive organs or you can say sex organs in case of human beings, in males they are known as testes and in females they are known as ovaries. So one pair of testes is present in human male and one pair of ovaries they are present in human female. मैंने आपको बताया कि पुबर्टी की स्टेज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो स्टेज है जब उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है। तो अगर मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल के अंदर टेस्टिस है, फीमेल में ओवरीज है। तो when the human beings they reaches at their stage of puberty, then there is a growth of testes and ovaries in the human body. Okay बेटे, तो जैसे ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो क्या प्रोड्यूस करने लगेंगे, उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स गैमीट्स प्रोड्यूस करने लगेंगे। ठीक है बेटे, तो मेल के सेक्स ऑर्गन्स जो उनको हमने टेस्टिस बोला है, तो टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे व्हिच आर नोन एज स्पर्म्स। और अगर मैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करती हूँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है यहाँ पर ओवरीज है, एंड कितनी ओवरीज प्रेजेंट है, 2 ओवरीज प्रेजेंट है, एंड इनसाइड दीज ओवरीज okay what is going to be formed, female gametes are going to be formed. So in case of females the ovaries they produce female gametes which are known as ovas. Okay but this is the case with human beings or other animals, but because here in the beginning of this chapter I am going to discuss with you what I am going to discuss with you that how the process of reproduction it takes place in primitive type of prokaryotic organisms and in advanced type of eukaryotic organisms.
तो देखो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी डिजाइन दे चूज देयर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. If they are the unicellular type of organism, this means they adopt simplest method of reproduction. And if they are the multicellular type of organism, so they are going to adopt the complex method of reproduction. Okay, children? So here, first of all, I am going to discuss with you that what is the definition of reproduction. So listen to me, children. Reproduction is the process by which living organisms they produce new individuals of the same species. ठीक है, एक ऐसा मेथड है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं और वो उसी स्पीशीज को बिलोंग करते हैं. अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमंस जो है वो ह्यूमन बेबीज को बर्थ देंगे. अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं तो एलिफेंट जो है वो एलिफेंट बेबीज को बर्थ देंगे. बर्ड्स हैं तो बर्ड्स जो है उनके एग्स में से बर्ड्स ही निकलेंगे. कैट है तो कैट के किटन्स जो है वो कैट जैसे होंगे. ओके बेटे, आप कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज. ठीक है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते रहते हैं देन देयर इज अ इंक्रीज in their species. they are able to produce more and more individuals. ओके, तो इस तरह से उनकी स्पीशीज में ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो ऐड होते हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है स्पीशीज की वो इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, इफ ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी एंड धीरे धीरे जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो यू हैव heard about this incidences so many times from newspapers. ठीक है, तो कई बार आप कुछ endangered species के बारे में सुनते हैं, जैसे टाइगर की स्पीशीज जो है इट इज एन endangered species because they are not reproducing very much. ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो इसलिए उनकी स्पीशीज जो है वो कम होती जा रही है. if there is only a one or single member of a particular species and if that member suffer from any disease or epidemic, so this means there is a chances of extinction of that species. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी स्पीशीज का नंबर बढ़ाते हैं, अपनी पॉपुलेशन में इंक्रीज करते हैं. ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले सेल्स हैं उनको रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स कहते हैं. तो किसी भी अगर सेल ने बेटे रिप्रोड्यूस करना है, ठीक. Yes children, what I am saying कि whenever a living organism has to participate in reproduction, तो दो सेल्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं, तो वो जर्म सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं. And you are very much familiar that how many type of cell divisions are there? So two type of cell divisions are there. Okay बेटे, दो तरह की सेल डिवीजन है. तो सेल डिवीजन टू टाइप्स की है. One is known as mitosis and other is known as meiosis. तो किसी भी रिप्रोडक्टिव सेल जो है उसने जब न्यू डॉटर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करने हैं तो फिर वो क्या करता है, सेल डिवीजन करता है. And how many types of cell divisions are there? Two type of cell divisions are there. One is mitosis and other is known as meiosis. ठीक है, हमेशा याद रखिए कि mitosis is a cell division that always occurs in the vegetative cell of the organism. ठीक है, आप सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई वेजिटेटिव सेल कौन से होते हैं, तो you must take it in your mind कि vegetative cells are those cells which are involved in growth of a living organism. ठीक है, जिसमें जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करते हैं उन सेल्स को वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, और जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस करते हैं उन सेल्स को हम जर्म सेल्स कहते हैं. स्पेलिंग इज GERM, जर्म सेल्स. तो डिवीजन कितने तरह की है, टू टाइप्स की है, माइटोसिस और मेयोसिस. माइटोसिस हमेशा वेजिटेटिव सेल्स में होती है एंड मेयोसिस इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स. ओके बेटे, तो व्हेनेवर अ सेल इट अंडरगोस अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जब भी कोई सेल डिवीजन में जाता है तो उस दौरान देयर इज अ वेरी स्पेशल इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन दोस सेल्स. ठीक है, एंड दिस स्पेशल इवेंट इज सिंथेसिस ऑफ द DNA. ठीक है, अब पेरेंट सेल से अगर डॉटर सेल बनना है
तो देखो बेटे पेरेंट सेल के पास जो भी है उसने क्या करना है, डॉटर सेल को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर पेरेंट सेल के पास अपना न्यूक्लियस है उसको डॉटर सेल को भी देना है। तो इसलिए पेरेंट सेल जो है उसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस को अपने पास रखेगा, एक डॉटर सेल को दे देगा। ठीक है, उसी तरीके से बाद में क्या होता है, पेरेंट सेल जो है वो अपना साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर देता है। हाफ ऑफ द साइटोप्लाज्म इट रिमेन्स इन द पेरेंट सेल एंड हाफ ऑफ द साइटोप्लाज्म इट गिव्स टू द डॉटर सेल्स। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि दो इवेंट यहाँ पर हुए हैं। फर्स्ट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड सेकंड इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक बेटे, तो देखो डॉटर सेल जो है उसके अंदर जब न्यू न्यूक्लियस आता है तो देखो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एंड दीस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं सेल वाले चैप्टर में क्लास 9 that you have studied the structure of nucleus. What is present inside the nucleus? Thread-like structures are present which are known as chromatin fibers. Okay, bete? Now inside these chromatin fibers, what is present? DNA is present, and you also know that full form of DNA it is deoxyribonucleic acid. और आप बहुत बार सुनते आ रहे हैं कि डीएनए जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं बिकॉज उसके पास हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं जिनको जीन्स कहते हैं। तो दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। तो अब ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करना है तो उसके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है बेटे, और गैमीट्स जो हैं वो हमेशा हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मतलब उसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये गैमीट्स जो हैं जिन सेल से बनते हैं ना, उन सेल्स के अंदर कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है। ठीक है बेटे, तो माइटोसिस और मियोसिस दो तरह की सेल डिवीजन है। अगर सेल्स जो है वो बॉडी में ग्रोथ करने वाले हैं तो फिर इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी। अगर वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उन्होंने गैमीट बनाने हैं, तो उस केस में मियोसिस होगी। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे कि माइटोसिस से हमेशा क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है एंड मियोसिस से क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। तो अगर ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो जब ह्यूमन जो है उसके टेस्टिस के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होना है, यानी स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना है, तो फिर जो टेस्टिस है उसके अंदर जो गैमेट मदर सेल्स होंगी या स्पर्म मदर सेल्स होंगी, उनके अंदर कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस होगी। और 46 की जगह पे जो स्पर्म्स है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। ओके बेटे, तो सेकंड हमारा टॉपिक यही है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, क्या ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाते। ठीक है, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दे हैव अडॉप्टेड। इफ दे हैव asexual मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन which is generally found in case of prokaryotic organisms such as bacteria, amoeba, paramecia. ठीक है, तो अगर प्रिमिटिव या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल मेथड है। तो एसेक्सुअल मेथड में जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, these daughter organisms they are very much similar to the parent organism, or you can say in other words that these daughter organisms they are the carbon copies of their parents. ठीक है, पर अगर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड है तो you know that in case of sexual method not only a single parent is there, two parents are there and the characters of both the parents they comes in the daughter organism. ठीक है, तो उस केस में वो कहते हैं कि जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं, इसलिए डॉटर ऑर्गेनिज्म इज नॉट द ट्रू कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव सम वेरिएशंस। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स में कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने वही लिखा है कि डीएनए विच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस and what is its role, it is responsible for transfer of characters from parents to the offspring.
ऑफस्प्रिंग, डॉटर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं वो डॉटर सेल्स या फिर ऑफस्प्रिंग्स या फिर यंग वंस, ये बोला जाता है। ओके, अब जब भी रिप्रोडक्शन होती है द रिप्रोडक्टिव सेल दे प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ डीएनए। तो आपको बताया कि पेरेंट सेल जो है उसके पास जो भी होता है ना उसकी 2 कॉपीज तैयार कर लेता है एंड डॉटर ऑर्गेनिज्म को देता है। तो अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होकर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, बाद में पेरेंट सेल खुद भी डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक स्पेशल इवेंट होता है दैट इज नोन एज सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो दिस डीएनए इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द chromatin fibers which are actually there present in the nucleus of the cell। तो देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है। तो जब रिप्रोड्यूस करना है ऑर्गेनिज्म में तो डीएनए की भी कितनी कॉपीज बन जानी है, 2 कॉपीज बन जानी है। ठीक है, और उस डीएनए को वो किसको दे देगा, डॉटर सेल को दे देगा। तो डॉटर सेल के अंदर भी एक डीएनए आ जाएगा। और आपको पता है कि डीएनए के अंदर कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, दोनों ही स्ट्रैंड्स जो हैं वो डॉटर ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं। व्हेन यू सी बोथ ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, तो ऑलवेज रिमेंबर वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज ओल्ड पैरेंटल स्ट्रैंड एंड दूसरा स्ट्रैंड कैसे होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं, पर कुछ कैरेक्टर्स हमारे अपने कैरेक्टर्स होते हैं क्योंकि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो कैरेक्टर्स हमारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं which are not similar to our parents, these characters are actually known as variations। तो यहाँ पे मैं 2 terms introduce कर रही हूँ, one is heredity and other is variation। तो always remember heredity is the transmission of characters from parents to daughter generation। and what is this variation? Variations are those characters which are unique to a living organism by which a living organisms differ from the parent organism। ठीक है, तो हाफ ऑफ द कैरेक्टर हमारे पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं, हाफ कैरेक्टर हमारे अपने कैरेक्टर होते हैं। अब जब आगे आप चैप्टर रीड करोगे then there is a small paragraph given and that is related that why there is an importance of variation। ठीक है, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि भाई पेरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ डॉटर ऑर्गेनिज्म 100% मैच नहीं करता। There are certain characters that are found in the daughter organism, ठीक है, and that is not present in the parent organism। Okay बेटे, तो ये variations हमारे अंदर कैसे आई हैं? तो these variations they actually comes in our body because of the replication of the DNA। What is replication of DNA? कि DNA जो है उसके अंदर ये ability होती है कि वो अपने जैसे और DNA तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी पेरेंट सेल ने डॉटर सेल बनानी है तो उसके अंदर डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो और डीएनए अपने जैसे तैयार करता है। और अगर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनी है तो दोनों के अंदर 1 डीएनए ट्रांसफर कर देता है। हमेशा याद रखिए कि एक डीएनए जो है उसके अंदर कितने स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड है। जिस तरह से एक रोप का स्ट्रक्चर होता है, एट द सिमिलर वे वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, रस्सी या रोप सभी ने देखी हुई है, उसमें 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ इंटरबाइंड होती हैं। In the similar way, the 2 strands of the DNA they are also intertwined with each other। Okay, बेटे। Now the question is that what is the importance of variation? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो उसके अपने कैरेक्टर्स हैं, उसकी उसको क्या एडवांटेज है? तो उसके देखो उसके जवाब में हमने लिखा है कि DNA copying which takes place during reproduction is important for maintaining the body designs of different organisms so that they can survive in the existing environment। ठीक है, तो कहते हैं कि डीएनए जो है, जो डीएनए का कॉपिंग प्रोसेस है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, उससे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरह के बॉडी डिजाइन्स मेंटेन होते हैं और इस वजह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर पाता है, सरवाइव कर पाता है। ओके चिल्ड्रन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। योर एनवायरनमेंट इन विच यू आर लिविंग इट इज नॉट अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट, इट इज अ डायनामिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, हमेशा उसमें चेंजेस होती रहती है and these changes may be in temperature, may be in climate, water levels, etc. So every living organism has the ability to adjust according to the environmental conditions।
ठीक है, if the organism cannot adjust themselves according to the environmental condition, then the particular species it become extinct. So because of these variations, ठीक है, because of these characters which are unique to a living organism and not similar with the parent organism, because of these characters, the organism can able to adjust itself to the environment. ठीक है बेटे, इसके वजह से ही हम environment की जो changing conditions है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं. उसके बाद एक थर्ड पॉइंट हम क्या कंसीडर करेंगे, if there are variations in some individuals of a species, then these individuals are able to survive in the changing conditions of the environment. ठीक है, तो आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर हम इजीली सरवाइव करेंगे. अगर हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. इसीलिए कहता है कि वेरिएशंस जो कि स्पीशीज में हमें देखने को मिलती हैं, दे आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, तो अगेन एंड अगेन इफ अ ऑर्गेनिज्म इज डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका मतलब दैट सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म हैव मोर एंड मोर वेरिएशंस प्रेजेंट इन दैट. अगर ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और उसके अंदर उतनी ज्यादा वेरिएशंस आती रहती है. तो यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि जितने ज्यादा वेरिएशंस हैं उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट है. मोर इज द वेरिएशन, मोर इज द सर्वाइवल रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ओके बेटे, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. तो हियर आई हैव रिटन मोर पॉइंट्स. तो उसमें मैंने आपको बताया है कि चेंजेस इन इकोलॉजिकल सिस्टम व्हिच आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वाटर लेवल, ठीक है, these can wipe out the population of species. अगर हम जो है हमारे अंदर वेरिएशंस ना होती तो जो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, वाटर लेवल में चेंजेस हो रहे हैं, उससे हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जानी थी. बट इफ वेरिएशंस आर इन सम इंडिविजुअल्स आर सुटेबल फॉर न्यू एनवायरनमेंट, देन देयर इज अ चांस ऑफ दोस ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वेरिएशंस कम होती है वो जल्दी जो है उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है. But those organisms which have so many variations, these organisms can face the harsh conditions present in the environment and they can easily survive. तो ये वाली presentation आपको भेज दी जाएगी, आपने go through करना है इसमें. I have written some more points. ठीक है, तो variations are very much helpful for the organism because इससे क्या होता है, organism जो है वो diseases से अपने आप को protect कर पाते हैं. If plants are there and there is less amount of water in their habitat, so these plants can easily tolerate the conditions of drought. ठीक है बेटे, अगर सूखा पड़ गया है तब भी प्लांट्स की डेथ नहीं होती अगर उनमें वेरिएशंस प्रेजेंट है. तो मोर द वेरिएशन, मोर इज द सर्वाइवल रेट ऑफ द स्पीशीज. ओके चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन and another is sexual reproduction. Okay बेटे, बाद में मैं ये टॉपिक लूंगी, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि reproduction जो है it is a kind of a biological process by which living organism like to produce their offsprings and these offsprings they are of their own kind. ठीक है, what is the significance of reproduction? By the organism have to be participate in reproduction. So here I have written some point. It enables the continuity of species from generation to generation. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है जनरेशन से जनरेशन तक. ओके, सेकंड पॉइंट इज इट इनेबल्स स्पीशीज टू लिव जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस एंड रिटेनिंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज. रिप्रोडक्शन से सिर्फ स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी ही नहीं बनी रहती बल्कि हर एक स्पीशीज के जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, वो आने वाली जनरेशंस में भी मौजूद रहते हैं. ओके बेटे, थर्ड पॉइंट इज द ऑफस्प्रिंग्स दे ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स एंड अल्टीमेटली डाई. देखो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है सबसे पहले ग्रोथ करते हैं, फिर वो मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होने के बाद वो नए ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं एंड फाइनली उनकी डेथ हो जाती है. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म कोई नए ऑफस्प्रिंग्स बनाता है तो वो ऑफस्प्रिंग्स भी एक टाइम के पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं, वो आगे न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन का वो चलता रहता है. ओके बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? टू टाइप्स.
One is asexual and other is sexual. So asexual reproduction always involve one parent. Okay, there is a single parent in the process of asexual reproduction. But in sexual reproduction, how many parents are there? 2 parents are there, and very important, both the parents they are of opposite sex. ठीक है, अगर एक पेरेंट मेल पेरेंट है तो दूसरा पेरेंट कौन सा होगा? फीमेल पेरेंट होगा। फिर देखो बेटे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट देयर। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। फिर देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग है या डॉटर जनरेशंस है, दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। वो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, these offsprings they are not genetically similar to the parent organisms. ठीक है, तो देखो ये सेक्सुअल में हम ये कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स आर द कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, but sexual reproduction have such offsprings which have some variations, so they are not the carbon copy of their parents. Okay बेटे, तो याद रखेंगे कि ये सेक्सुअल मेथड हमेशा प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा देखा जाता है, and sexual method is the characteristic feature of advanced complex type of organisms. Okay children, here I am taking the first one, asexual reproduction. So I have written here, in this method a single individual or parent is capable of producing offspring. ये कैसा मेथड है जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट होता है और उससे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं. So new offsprings which are formed, they are the carbon copy of their parents. जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपीज होते हैं, मतलब दे हैव ऑल द कैरेक्टर्स व्हिच आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. ठीक है, चाहे वो उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो उनके जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे ही होंगे. ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उससे बनने वाला ऑफस्प्रिंग जो है वो कार्बन कॉपी होता है अपने पेरेंट्स की. सो दैट्स व्हाई समटाइम्स वी हैव यूज्ड द टर्म क्लोन फॉर दैट. ठीक है, what is a clone? A clone is such an individual or a cell which is morphologically and genetically similar to the parent organism. एक ऐसा सेल जिसके सारे के सारे कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर और जेनेटिक कैरेक्टर्स पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, उसको हम क्लोन कहते हैं. ठीक है बेटे, तो क्लोन वर्ड जो है वो हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के ऑफस्प्रिंग के लिए यूज कर सकते हैं. Yes, here I have written the differentiation between asexual and sexual reproduction. The children, all of you remember that offsprings are genetically identical to the parents in case of asexual reproduction. ठीक है, asexual reproduction में जो daughter organism है, offspring है, it is genetically identical to the parent organism. And in sexual reproduction, offsprings are not genetically identical to the parent. Okay, बेटे, point number 2. Asexual reproduction, it gives rise to pure variety in the new generation. ठीक है, asexual reproduction से जो नई जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनमें प्योर कैरेक्टर्स होते हैं. एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो एग्जैक्टली न्यू होते हैं, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं. ठीक है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्टर प्रोसेस है. इट रिक्वायर्स लेसर एनर्जी एंड रिसोर्सेस. But sexual reproduction is a slower process. It requires more energy and more resources. ठीक है, इसमें लेस एनर्जी लगती है तो सेक्सुअल में ज्यादा एनर्जी लगती है, ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं. पॉइंट नंबर 4. Asexual reproduction does not bring change in the genetic diversity of the species population. ठीक है, asexual reproduction से वेरिएशंस नहीं आती ऑफस्प्रिंग में और इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है स्पीशीज. पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस देखी जाती हैं. सो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मोर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. ओके बेटे, इफ यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ asexually reproducing organisms, then it may be bacteria, it may be a unicellular fungus known as yeast, it may be flatworms. ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स आपने क्लास 9 के अंदर एनिमल किंगडम पढ़ा है और उसमें प्लैटीहेल्मिन्थ्स इज द फाइलम, इसमें फ्लैट वॉर्म्स आ जाती हैं. उसमें हम टेपवर्म का एग्जांपल दे सकते हैं, लिवर फ्रूट का. देखो बेटे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आ सकते हैं,
फिशेस आ सकती हैं, ठीक है, कुछ फिशेस एग्स देती हैं, कुछ फिशेस जो है वो बेबी फिशेस को बर्थ देती हैं, और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके बेटे, बाइनरी फिशन इज द फर्स्ट मेथड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। तो देखो उसमें पेरेंट अमीबा गिव बर्थ टू 2 डॉटर अमीबा, ठीक है, पेरेंट अमीबा जो है वो 2 डॉटर अमीबास को बर्थ देता है, एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, देन साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है। तो टुमारो वी विल स्टार्ट विद दिस बाइनरी।